me había dicho que no, disculpe. Es que, no sé, recién me acordé como que algo me pasó por mi cabeza y se me olvidó. ¿No será que usted sí se dio cuenta y no me los quería dar? No, ¿de qué me habla usted? Yo creo que lo que pasa es que como que me está viniendo una, ¿cómo se dice? ¿Visión? Ajá, visión. Y de pronto, pero ahí está. No diga nada. Que vaya bonito. Surrounded by angels, demons can't approach us. Me llamo dos cadenas, baby, buenas noches. See on the big la dog, I'm the factura para cobrarlo. La factura. La factura, mi amor. ¿Cuál factura? La factura que les di en la mesita y de hecho si la pierden tienen que pagar la multa. Yo les expliqué en la mañana, ¿no se acuerdan? Listo, aquí está el jugo que me pidieron. Un jugo maracuyá, listo. Aquí les dejo la factura. Por favor, si la pierden hay una multa, ¿ok? Gracias. Está buenísimo el jugo. Sí, mi amor. Sí. Papelito. Ya, dáselo. No, lo que pasa es que se perdió, mi amor, acuérdate. No tenemos el papelito, pero no se preocupe, vamos a pagar la multa. ¿Cuánto es? Bueno, ya, entonces sería con la multa de la factura que perdieron, $125. 125. انا الساحق جماجمكم انا العنوان الابرز انا القبل ينجز انا من الفشك فاز انا المعاشر وعدم الخيصه الشاجور طريقكم मैंने जब कहा शर्म कर दो मेरे साया मेरे मां को थप्पड़ मारा और मेरी मां जलती हुई तो दूर गई लोगों ने मुझे पकड़ के अंदर बंद कर दिया कमरे में सारी रात में शोर सुनता रहा नशे में थोड़ा सवेरे आंख खुली तो मेरी बीवी बैग बांध ली मैंने कहा जा रही है Pero मेरी मां jamás का नहीं hablamos बना que मेरा 100 मैंने कहा मेरी अम्मा dólares. O sea que no va a salir más caro el caldo que los कहने लगा huevos. मुझे क्यों नहीं बताया Pero es que no te culpa que no tengan aquí la factura, señorita. मेरे जनाजे के करीब ना आए हज़रत इमारत से दिनार फरमाते जब उसने ये बात सुनाई तो मैंने भी उसके मुंह पर मैंने कहा दूसरी खबर है कहते हैं वो रोने लगा कहने लगा जब माँ इंतकाल की खबर मिली तो मैंने कुल्हाड़ी लेके वो हाथ काट दिया जिससे माँ को मारा था मैंने सारी जायदादें खिलाफ कर दी 24 साल हो गए 24 साल सारी रात नमाज पढ़ता हूँ रोजा रखता हूँ हज करता हूँ और हर साल कोई आके कहता है जा दौड़ जा तेरा कोई हुजूर दुआ करे मालिक राजी हो जाए फरमाते मैं थप्पड़ मार के आ गया मैंने कहा तुझे राजी हो जाए इतने जालिम से इमाम मालिक फरमाते रात को आके सोया तो मुझे ख्वाब में रसूल पाक का दिखा तो नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया मालिक तू से मायूस क्यों कर रहा है अल्लाह तो बड़ा मेहरबान है कब हुजूर माँ के नाफरमान को माफी कैसे मिलेगी तो इमाम मालिक फरमाने लगे नबी करीम ने फरमाया जाओ उसे जाके बता दे कि क़यामत में तेरी माँ की वजह से बख्श दिया जाएगा बदतमीजी से बात करने वाले को ऐसे रिप्लाई दो उसकी अकड़ 1 सेकंड में टूटेगी पहला रिप्लाई अगर वो कहे तेरी लाइफ कैसी चल रही है तुम हल्का सा मुस्कुरा के कहो तुम्हारी मोह की तरह चल रही है दूसरा रिप्लाई अगर कोई रिश्तेदार बोले जम के पढ़ाई करो उससे कहो अब क्या फ्रीजर में बैठ जाऊं क्या तीसरा रिप्लाई अगर वो कहे तुम अपने दिल की सुनते हो या दिमाग की आप हंसकर बोलना मैं अपने घर वालों की सुनता हूं चौथा रिप्लाई अगर कोई कहे आजकल क्या चल रहा है तेरी लाइफ में आप मुस्कुरा कर कहना तुम जैसों को इग्नोर करना चल रहा है पांचवा रिप्लाई अगर वो कहे तुम्हें मैं अपनी परेशानी कैसे बताऊं आप कहना अपने मुंह से बता दे भाई हंसी आई तो कमेंट में फनी इमोजी टाइप करना भूलना मत سخواد خواد گوری وزنی میچی مرگوری سخواد خواد گوری وزنی میچی مرگوری سترگو صاحب پښتانه یو هم پښتو والو هم مینا خبره مې وسپینا په یار باندې شیندلې مې دا تل نظر کې وینا خبره ونی سي موټر ته ور چپټ چې اغوای کو ونی سي موټر ته ور چپټ چې اغوای کو بلوټ چې پر کښته ملګر So they say it's like, big deals, straight shows like, make it this, make it that like, don't let you know how it sound like. I'm in the States, so they say it's like, big deals, straight shows like, make it this, make it that like, don't let you know how it sound like. running down my face water running different ways water like a billion ways water just a tear in space water running down my face water running different ways Otra vez se nos va a perder y otra vez vamos a volver a pagar
La chica mismo cogió la. मैं खुद अपनी जिंदगी में ऐसे केस देख चुका हूं। रोती पीटती फिर रही है खवातीन, जिन्होंने से कोर्ट में जाकर बुला ली, मर्द नहीं थी तो वो लेके चली। उसके बाद क्या हुआ, बच्चियां थोड़ी सी बड़ी हुई हैं, अब उनको फिक्र हो गई भाई बच्चियों का तो कोई सफाई नहीं, रिश्ते नहीं आ रहे, अब अपने रिश्ता ले लिया और मर्द खेलते हैं फिर औरतों से। जब मर्द को पता चला ये कौन सा लेके आई है, शुरू में तो मर्द पूरी नरम ना, तो मैरिड औरत को ना शादीशुदा औरत से मर्द बड़ी नरमी से बात करता है, दोनों बात कि तुम खुला ले लो, कोई बात नहीं, मैं हूं ना। उसके बाद वो मियां कहता है कि जिस कंपनी ने अपने पहले शौहर से वफा नहीं की, मेरे साथ कहां वफा करे, वो इंस्टीमेट के तौर पे खेलता है। उसके बाद मेरा बस मेरे व्हाट्सएप पे अभी औरतों की चीखों पुकार पड़ी हुई है, अल्लाह की कसम अभी दिखा सकता हूं आपको शौहरों से क्या दफा खुले लिए, क्या हाल हुआ औरतों का, सिर्फ खुद की बेस पे मर्द से तलाक ले ली, बच्चियों को लेकर भूल गई जिंदगी बर्बाद। जिस दूसरे मर्द ने शादी की उसे थोड़े दिन के बाद छोड़ दिया, छोड़ता नहीं, वारियां नहीं दे रहा, पुराना वाला भी नहीं बता, बच्चियां बड़ी हो गई, मैं अपनी शादी करूं, अपनी बच्चियों को खिलाऊंगा, मर्द ने कहा किसी को गुस्सा आ जाता है यार, तूने छोड़ दिया, मुझे वफा नहीं मेरे साथ, तो ये तो बताया इसमें औरत का भी नुकसान है, तो लोग इसको समझ रहे हैं, आवाज भी उठा रहे हैं, लोग आवाज उठा रहे हैं इसके खिलाफ। किसी ने क्या खूब कहा है कि मैसेज उसी को करें जो खुशी से रिप्लाई करे, कॉल उसी को करें जो उसे अटेंड करे, मोहब्बत उसी से करें जो आपकी परवाह करे, और दोस्ती उसी से करें जो दुख सुख में साथ दे। बाकी किसी के पीछे पड़कर खुद को बार बार जलील करवाना छोड़ दे मेरे दोस्त। कभी भी किसी से तवज्जो की भीख मत मांगे, क्योंकि भीख में मिली हुई मोहब्बत भीख में मिली हुई रोटी की तरह होती है, जिसके लिए आपको बार बार जलील होना पड़ता है। जहां कदर ना हो वहां अपने खूबसूरत जज्बे जाया मत करें, क्योंकि मोहब्बत नाशुक्रे लोगों को कभी भी नसीब नहीं होती। नाशुक्रे लोग हाथ में आया हुआ कीमती हीरे जो होता है ना, उसको भी आम समोती समझकर ठुकरा देते हैं, और कदर करने वाले लोग खूबसूरत पत्थर को भी नगीने में लगाकर हीरे जैसा कीमती बना देते हैं। कदर करने से कीमत बढ़ जाती है, और कदर न करने से कीमती चीज भी रद्दी समझकर ठुकरा दी जाती है। कीमती लोगों का ख्याल रखिएगा। किसी ने क्या खूब कहा है कि मैसेज उसी को करें जो खुशी से रिप्लाई करे, कॉल उसी को करें जो उसे अटेंड करे, मोहब्बत उसी से करें जो आपकी परवाह करे, और दोस्ती उसी से करें जो दुख सुख में साथ दे। बाकी किसी के पीछे पड़कर खुद को बार बार जलील करवाना छोड़ दे मेरे दोस्त। कभी भी किसी से तवज्जो की भीख मत मांगे, क्योंकि भीख में मिली हुई मोहब्बत भीख में मिली हुई रोटी की तरह होती है, जिसके लिए आपको बार बार जलील होना पड़ता है। जहां कदर ना हो वहां अपने खूबसूरत जज्बे जाया मत करें, क्योंकि मोहब्बत नाशुक्रे लोगों को कभी भी नसीब नहीं होती। नाशुक्रे लोग हाथ में आया हुआ कीमती हीरे जो होता है ना, उसको भी आम समोती समझकर ठुकरा देते हैं, और कदर करने वाले लोग खूबसूरत पत्थर को भी नगीने में लगाकर हीरे जैसा कीमती बना देते हैं। कदर करने से कीमत बढ़ जाती है, और कदर न करने से कीमती चीज भी रद्दी समझकर ठुकरा दी जाती है। कीमती लोगों का ख्याल रखिएगा। महसूस होता है कि नींद गहरी नहीं आती, महसूस होता है कहीं किसी में तकलीफ है, अब बदल ना जाए, अब ना कई क्लास फेलो चले गए दुनिया छोड़, बदल ना जाए। अपने बहन भाइयों में से कईयों का जनाजा पड़ा, बदल ना जाए। हम में से कईयों ने माँ बाप दफन कर दिए, फूल डाल दिए कब्रों, बदल जाए। अब वक्त थोड़ा रह गया, कुछ तब्दीली की तरफ आए, अब तौबा सही वाली कर लें, अब इस्तिगफार दिल से पढ़ें, अब तब्दील हो जाए, अब अपने अंदर बाहर कुछ तब्दीलियां लाएं, अब अपने ज़ाहिर और बातिन को संवारें। अब अल्लाह रसूल की बारगाह में जाना है ना, तो कहीं ऐसा ना हो शर्म आए हुजूर के सामने खड़े होते, हया आए नबी करीम की बारगाह में खड़े होते, अब कुछ तब्दीली लाएं, आज इरादा करें। एक दफा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोश्त लेकर आए और हजरत आयशा को देते हुए फरमाया कि इसे साफ करके पकाओ और शोरबा जरा ज्यादा रखना। तो हजरत आयशा गोश्त को साफ करने लगी, कुछ देर में बोली शोरबा भी ज्यादा रखना है, क्या कोई आने वाला है या मेहमान आ रहे हैं? तो आपने फरमाया नहीं, आना तो किसी ने नहीं है, लेकिन मुझे पता चला है कि मदीने में खदीजा की कुछ सहेलियां आ रही हैं, तो मेरा दिल करता है कुछ सालन बतौर तोहफा उनको भी भेज दो, तो शोरबा जरा ज्यादा रखना। हजरत आयशा कहने लगी, या रसूल अल्लाह, आप खदीजा का जिक्र बहुत करते हैं, हालांकि उम्र में भी आपसे 15 साल बड़ी थी। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको जवान और खूबसूरत बीवियां दी और आप फिर भी खदीजा का जिक्र करते हैं। तो सामने से कोई जवाब ना आया, दोनों तरफ से खामोशी छा गई। आयशा भी जुमला बोलकर खामोश हो गई और रसूल अल्लाह के जवाब का इंतजार करने लगी। काफी देर तक जब जवाब ना आया तो उन्होंने नजर उठाकर देखा, देखते हैं अल्लाह के रसूल का चेहरा मुबारक एकदम सुर्ख हो गया है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, आयशा आज बात की है, आज के बाद ये बात ना करना। तो आयशा कहने लगी, हुजूर क्या हुआ? वो सुर्ख रंग का जलाल आंसुओं में बदला और अल्लाह के रसूल रोते हुए फरमाने लगे, कहने लगे, आयशा तुम सारी बीवियां सुखों के वक्त आई हो, खदीजा तो मेरे दुखों की साथी है, वो तो मेरी आजमाइशों तकलीफों की साथी है, उसे तो मेरे साथ कठिन वक्त बिताया है। लोग मुझे पत्थर मारा करते, मेरे रास्ते में कांटे बिछाते, मैं परेशान होकर जब घर लौटता तो देखता उसके एक हाथ में खजूरें और दूसरे हाथ में दूध से भरा प्याला होता। खजूरें खिला के दूध पिला के बिस्तर बिछा के रोटी दे के कहती, महबूबा कम ना करना, अल्लाह पाक बड़ी इज्जत अता फरमाएगा। आज मैंने किस्सा पढ़ा तो समझ आया कि मर्द के लिए औरत का सिर्फ खूबसूरत होना और उसका अच्छा वक्त देखकर उसके साथ रहना मोहब्बत नहीं, सिर्फ वक्त गुजारी है। उसके दिल पे मोहब्बत की मोहर वही औरत लगा सकती है जो उसके बुरे हालातों में उसके साथ खड़ी रही हो, जिसने उसके साथ कठिन वक्त काटा हो, और ये सब देखते हुए भी उस औरत ने एक माँ की तरह उसका ख्याल रखा हो, फिर चाहे वो उम्र में उससे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। ऐसी औरत को मर्द मरते दम तक नहीं भूल सकता। एक दफा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोश्त लेकर आए और हजरत आयशा को देते हुए फरमाया कि इसे साफ करके पकाओ और शोरबा जरा ज्यादा रखना। तो हजरत आयशा गोश्त को साफ करने लगी, कुछ देर में बोली शोरबा भी ज्यादा रखना है, क्या कोई आने वाला है या मेहमान आ रहे हैं? तो आपने फरमाया नहीं, आना तो किसी ने नहीं है, लेकिन मुझे पता चला है कि मदीने में खदीजा की कुछ सहेलियां आ रही है, तो मेरा दिल करता है कुछ सालन बतौर तोहफा उनको भी भेज दो, तो शोरबा जरा ज्यादा रखना। हजरत आयशा कहने लगी, या रसूल अल्लाह, आप खदीजा का जिक्र बहुत करते हैं, हालांकि उम्र में भी आपसे 15 साल बड़ी थी। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको जवान और खूबसूरत बीवियां दी और आप फिर भी खदीजा का जिक्र करते हैं। तो सामने से कोई जवाब ना आया, दोनों तरफ से खामोशी छा गई। आयशा भी जुमला बोलकर खामोश हो गई और रसूल अल्लाह के जवाब का इंतजार करने लगी। काफी देर तक जब जवाब ना आया तो उन्होंने नजर उठाकर देखा, देखते हैं अल्लाह के रसूल का चेहरा मुबारक एकदम सुर्ख हो गया है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, आयशा आज बात की है, आज के बाद ये बात ना करना। तो आयशा कहने लगी, हुजूर क्या हुआ? वो सुर्ख रंग का जलाल आंसुओं में बदला और अल्लाह के रसूल रोते हुए फरमाने लगे, कहने लगे, आयशा तुम सारी बीवियां सुखों के वक्त आई हो, खदीजा तो मेरे दुखों की साथी है, वो तो मेरी आजमाइशों तकलीफों की साथी है, उसे तो मेरे साथ कठिन वक्त बिताया है, लोग मुझे पत्थर मारा करते, मेरे रास्ते में कांटे बिछाते, मैं परेशान होकर जब घर लौटता तो देखता उसके एक हाथ में खजूरें और दूसरे हाथ में दूध से भरा प्याला होता। खजूरें खिला के दूध पिला के बिस्तर बिछा के रोटी दे के कहती, महबूबा कम ना करना, अल्लाह पाक बड़ी इज्जत अता फरमाएगा। आज मैंने किस्सा पढ़ा तो समझ आया कि मर्द के लिए औरत का सिर्फ खूबसूरत होना और उसका अच्छा वक्त देखकर उसके साथ रहना मोहब्बत नहीं, सिर्फ वक्त गुजारी है। उसके दिल पे मोहब्बत की मोहर वही औरत लगा सकती है जो उसके बुरे हालातों में उसके साथ खड़ी रही हो, जिसने उसके साथ कठिन वक्त काटा हो, और ये सब देखते हुए भी उस औरत ने एक माँ की तरह उसका ख्याल रखा हो, फिर चाहे वो उम्र में उससे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो।
ऐसी औरत को मर्द मरते दम तक नहीं भूल सकता। गांधी साहब ने बात की है कि तरावी तो इस्लाम में है ही नहीं, तो हज़रत उमर ने शुरू की है। हज़रत उमर ने तरावी शुरू की है, जिस तरह से शुरू की इससे पहले हमें अबू बकर के दौर में ये नहीं मिलती। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खत्म की तरावी, 3 दिन पढ़ाई, उसके बाद आपने कहा कि ये फर्ज ना हो जाए, हज़रत उमर ने शुरू की। यहीं से हमारा भी अहले हदीस से इख्तिलाफ इसी बेस पे शुरू होता है। हम ये कहते हैं कि अगर आपने तरावी को मानना है हदीस की रोशनी में, तो हदीस में तरावी का सबूत नहीं है, बल्कि तरावी की नफी है। 3 दिन पढ़ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको क्या कर दिया, खत्म। तो आप भी खत्म करें, समझते हैं ना, आप एक भी करना पड़े। उन्हें ताजुद आर्डर करते हैं, आप तरीके से इंफरादी 2 दिन नहीं पढ़ना चाहिए। और अगर आप उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अमल को बेस बनाते हैं, तो फिर उमर रज़ी अल्लाह तआला ने 20 पढ़ी है, 8 नहीं पढ़ी है। 8 के बारे में जो मुवत्ता की रिवायत है वो ज़ईफ है, और इसकी 2 दलीलें बहुत मजबूत है। नंबर 1, मुवत्ता इमाम मालिक की तसनीफ है, इमाम मालिक खुद भी 8 के कायल नहीं है, वो तो 20 से भी ज्यादा के कायल है। और क्यों कायल है, असल में तो वो भी 20 के कायल है, लेकिन 16 रकअतों के किसी बेस पे कायल है, वो एक अलग बहस है, वो भी हमारा हदफ नहीं है। बाकी तीनों इमाम 20 के कायल है। तो हज़रत उमर की ये जो 8 रकअतों वाली रिवायत है, पहली बात तो ये कि इमाम मालिक मज़हब में भी फतवा 8 पर नहीं है, तो वो क्यों अपनी किताब को छोड़ेंगे। और सनद के लिहाज से वो मुस्तरब है। उसका इस्तिराब क्या है, जो सनद मुस्तरब होती है ना, अगर वो रावी सिका भी हो, लेकिन मुस्तरब सनद रावी का इस्तिराब है ना, वो एक पे टिकता नहीं है, तो इस्तिराब की बेस पे भी हदीस ज़ईफ होती है। बहुत सारे मुहद्दिसीन इसको मुस्तरब। गुर्बत क्यों आती है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुर्बत के 14 असबाब हैं। नंबर 1, कुरान मजीद न पढ़ना। नंबर 2, मेहमान आने पे बुरा मुंह बनाना। नंबर 3, औलाद को गाली देना। नंबर 4, मकड़ी के जाले ना उतारना। नंबर 5, खाने के बर्तन गंदे रखना। नंबर 6, घर में गंदगी रखना। नंबर 7, टूटे बर्तनों में खाना खाना। नंबर 8, पानी बगैर ढान पे रखना। नंबर 9, बुरे ख्यालात सोचना। नंबर 10, अंधेरे में खाना। नंबर 11, सवाली को खाली हाथ लौटाना। नंबर 12, घड़े से मुलाकात कर पीना। नंबर 13, सूरज निकलने के बाद सोना। नंबर 14, बिस्तर पर खाना खाना। इस वीडियो को दूसरों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि दीन की बात फैलाना सदका जारिया है। De verdad, entonces de una, pues. Pero, mientras Andrea no esté, ya está lista la camita, está toda... मर्द पर लाजिम है कि कम से कम 4 महीने में बीवी से एक दफा वो लाजमी हमसे नहीं करे। तो अगर वो 4 महीने में एक दफा भी नहीं करता, तो फिर जो है वो ध्यानतन जिम्मेदार होगा। इस बात का खतरा है कि वो गुनहगार हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कानून बनाया था कि 4 महीने से ज्यादा कोई बीवी से दूर रहे, तो कम से कम इतना है। तो इससे ज्यादा भी अगर कोई मर्द बीवी के करीब नहीं आ रहा, तो फिर वो जालिम कहलाएगा शरीयत में। बाकी हर औरत और हर मर्द के हालात मुख्तलिफ होते हैं। बाज़ औरतों में ख्वाहिश ज्यादा होती है, बाज़ में कम होती है, ये नेचुरल है। इसका कोई इससे ताल्लुक नहीं है कि औरत की बुरी है। बाज़ औरत में ये ख्वाहिश नफ्स बहुत ज्यादा होती है, उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, तो लोग फिर मर्द उस बीवी को बुरा समझना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसका बुराई और अच्छाई से ताल्लुक नहीं। जैसे मर्दों में सेहत के लिहाज से और उनके जो मेंटल हेल्थ है उसके लिहाज से मर्दों में फर्क होता है। किसी में ख्वाहिश बहुत ज्यादा होती है, किसी में कम होती है, इस तरह ख्वातीन में भी होती है। बहुत सी खातून होती हैं उनकी डिजायर बहुत ज्यादा होती है। तो ये सबकी अलग अलग अल्लाह ने फितरत बनाई। आज भी वो नौजवान अपनी बाइक से मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मैं तंग आ चुकी थी उस सड़क था आशिक से। पिछले 1 महीने से मैं उसे बर्दाश्त कर रही थी। जब भी मैं घर से निकलती, मेन रोड तक जाती, तो वो मेरा ही मुझे से खड़ा होता। जैसे बस स्टॉप से मैं बस पकड़ती, तो उसके बाद वो मेरी बस के पीछे पीछे सफर करना। ऑफिस तक की ड्यूटी वही थी। और जब मैं ऑफिस से वापस घर तक जाती, तब भी पता नहीं उसे क्या थी। पहले तो मुझे लगा शायद ये मेरा वहम है, लेकिन ऐसे नहीं था। वो आवारा सा लड़का था, अजीब सी पैंट पहन के रखता था, अपनी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोले रखता था, मुंह में हर वक्त कुछ न कुछ चुबाता रहता था, आंखों पे नजर का चश्मा भी था। मैं सोच रही थी आज उस लड़के से 2-2 हाथ करके ही घर जाऊंगी। जैसे ही मैं बस स्टॉप से उतरी, आगे का रास्ता सुनसान होता था, तो वो मुझसे 20 कदम पीछे अपनी बाइक धीरे धीरे चलाता रहता। जब भी मैं उसे पलट के देखती तो दाएं बाएं देखने लगता, साथ में मुस्कुराने लगता। खुश शक्ल नौजवान था, लेकिन मेरा पीछा क्यों कर रहा था? बहरहाल कुछ दूर जाकर मैं वहीं रुक गई। मेन रोड पे उस वक्त गाड़ियों की आमदरफ्त थी। मैंने देखा उसकी बाइक भी रुक चुकी थी। मैं पलट के पीछे को जाने लगी तो वो कुछ घबरा सा गया। मैं उसकी बाइक के सामने जाके खड़ी हो गई। मैंने कहा, क्या चाहते हो तुम? कौन हो तुम और क्यों मेरा पीछा किए जा रहे हो? कहने लगा, मैंने क्या किया है? मैंने कहा, मेरे सामने झूठ मत बोलो, मैं पिछले 1 महीने से नोट कर रही हूँ। वो कहने लगा, वाकई पिछले 1 महीने से नोट कर रही हूँ? शुक्र है मेरे अल्लाह का। मैं तो समझा था मैं पागलों की तरह आपके पीछे पड़ा, आप तो देखती तक नहीं है। उसकी ढिठाई देख के मैं जितना हैरान होती उतना कम था। मतलब उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था इस चीज़ का। वो तो मुंतज़िर था कि मैं कब उसे नोट करती हूँ और कब नहीं। कहने लगा, इसका मतलब है आप बराबर लगी हुई है। मैंने कहा, मैं इस किस्म की फजूल बातें सुनने की आदी नहीं हूँ। कहने लगा, मैंने तो आपसे कुछ कहा ही नहीं है, आप तो खुद पलट के मेरे पास आई हैं, खुद ही बात कर रही हैं। मैं तो सिर्फ आपको देखता हूँ, अपनी आंखों की प्यास बुझाता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है आप। मैंने कहा, देखो मुझे ये सड़क छाप किस्म के आशिक बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। कहने लगा, फिर कैसे आशिक अच्छे लगते हैं? मुझे बता दें, मैं कब से वही बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लगता था जैसे वो मेरी बातों का तमस्कुर उड़ा रहा है। मैंने कहा, आइंदा मेरा पीछा नहीं करना। कहने लगा, तो अपना फ़ोन नंबर दे दें ताकि मेरा भी काम आसान हो जाए। रोज़ रोज़ अब्बा की दुकान छोड़ के यहाँ आना पड़ता है, फिर डांट खानी पड़ती है। वो तो यूँ बेतकल्लुफ़ था जैसे मैं कई बार उससे बातें कर चुकी हूँ। मैंने कहा, तुम्हारी तरह ना तो मैं फारिग हूँ, ना मेरे पास इतना टाइम है कि मैं तुम जैसे फजूल से लड़के से बात करती हूँ। कहने लगा, फजूल तो नहीं हूँ, प्लीज़ दे देना नंबर, ज़्यादा तंग नहीं करूँगा। मेरे पीछे मत करना, वरना गली के लड़कों से तुम्हें मार पड़वाऊंगी। ये कहकर मैं तेजी से चलती हुई अपनी गली के अंदर आ गई। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुई, अम्मा की खांसने की आवाज़ आ रही थी। शायद फिर से माँ को खांसी का दौरा पड़ा था।